Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. Hope everybody is fine. Dear students, once again a warm welcome to all of you in this live session of today's class of physics. Dear students, in our previous class we are discussing about optical instruments and we have discussed a simple microscope. And after that we have discussed about a compound microscope. After completion of these two, we done some numericals, very important problems which are very important for your examination point of view and also for your competitive point of view. Hope you people have gone through the lecture very well. And my dear students, once again I am intimating you that your examination will be held after the completion of this ray optics, and almost I will set your question paper on the problems which we have discussed in classrooms, which we have discussed during the online classes. Dear students, today we have one more optical instrument, and in previous class we have discussed about compound microscope and simple microscope, and both compound microscope and simple microscope are basically used to magnify the images of very minute particles. And in telescope, what we are going to discuss in telescope is an optical instrument. Telescope is an optical instrument which is used to observe distinct images of heavenly bodies. That means the bodies which are far away from us, example, that's our planets, that's our stars which are far away from us, and if we want to observe the very distinct images, enlarged images of these heavenly bodies, we are using an optical instrument, and that is basically a telescope. And there are so many types of telescopes. So telescope is basically what? टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमें काम आता है डिस्टिंक्ट इमेजेस को बनाने में, और कौन सी डिस्टिंक्ट इमेजेस, हेवनली बॉडीज की डिस्टिंक्ट इमेजेस बनाने में हमारी मदद करता है. ठीक है, ये टेलीस्कोप भी एज इट इज है जैसे हमारा माइक्रोस्कोप होता था, इसमें भी एज इट इज कन्वर्जिंग लेंसेज लगते हैं, दो कन्वर्जिंग लेंसेज लगते हैं. तो मेरे कहने का यहां पर मकसद यही है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये जो टेलीस्कोप होता है ये किसका काम में आता है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या फर्क है, टेलीस्कोप हमें मदद करता है ऑब्जर्व डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ हेवनली बॉडीज. ठीक है, तो आप हेडिंग नोट बनाइए जो हमारे पास व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है हम उनको डिस्कस करेंगे. तो जो पहला आपके पास टेलीस्कोप है दैट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप हेडिंग बनाइए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसकी डेफिनेशन क्या है. मैंने पहले ही बोला, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करने में हमारे काम में आता है. तो इसी को हम कैसे लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व डिस्टिंक्ट इमेज. तो आप लिख भी सकते हैं. तो यहां मैं इसकी डेफिनेशन कोट करता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा इट इज यूज्ड, ये आपको दिख रहा है ना ऊपर से, इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व distinct image of heavenly bodies
तो अगर आपको दूर वाले प्लैनेट स्टार्स को देखना है, उनकी इमेजेस को, डिस्टिंक्ट इमेजेस आपको चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना है, उनकी इमेजेस को ऑब्जर्व करना है, माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर यूजिंग अ टेलीस्कोप। और अगर आपको छोटे छोटे और उन छोटे को क्या बोलते थे हम क्लास में, प्यूता, उनकी इमेजेस चाहिए तो वी आर यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, राइट। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पर जाते हैं कि बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है। ये भी सेम पैटर्न पर ही है, इसमें भी दो कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं। तो बनाने की अगर कोशिश करूंगा मैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे पास टू कन्वर्जिंग लेंसेज, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू lenses, two converging lenses, it consists of two lenses या converging lenses या convex lenses। तो यहां लिखूंगा मैं it consists of two lenses, it consists of two lenses। कौन कौन सी? the objective lens O of large focal length, the objective lens O, the objective lens O, the objective lens O of large focal length, large focal length and large aperture, and large aperture and an eyepiece, and an eyepiece of small focal length, small focal length। तो इसमें भी हमारे पास दो लेंसेज होते हैं, दो कन्वेक्स लेंसेज होते हैं। एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरी हमारे पास आईपीस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, उस ऑब्जेक्टिव लेंस का ओ जिसको हम बोलते हैं, इसकी जो फोकल लेंथ होती है, तो ये लार्ज फोकल लेंथ वाला कन्वेक्स लेंस होती है और इसका अपर्चर भी बड़ा होता है। इसका अपर्चर बड़ा क्यों होता है, इस पर थोड़ी देर बाद आते हैं। फिलहाल आपको याद क्या करना है कि इसमें भी दो कन्वर्जिंग लेंसेज लगते हैं। इसमें जो पहली वाली लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव इसलिए बोलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास होगी, ऑब्जेक्ट के साइड में होगी ये वाली लेंस, और आईपीस जहां से हम देखने की कोशिश करेंगे, जहां से हम देखेंगे, तो उस वाले लेंस को हम आईपीस बोलेंगे जो हमारी आंख के साइड में होगी। ठीक है, अच्छे से, कोई परेशानी वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, स्मॉल फोकल लेंथ एंड लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है, और ये भी फिटेड होते हैं एक ट्यूब में, ताकि हम इन दोनों लेंसेज को दूर या कम, इनकी जो बीच वाली डिस्टेंस है उसको कम या ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको बनाएंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद में थोड़ी और बातें हो जाएंगी। फिलहाल हम इसकी कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, राइट। तो पहली वाली लेंस जो है बड़ा फोकल लेंथ वाली लेंस है। चलिए बड़ी फोकल वाली लेंथ बनाते हैं। ये हमारे पास एक बड़ी फोकल लेंथ वाली लेंस है और इस लेंस को कौन सी लेंस बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसको हम ओ रखेंगे इधर, और यहां से ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और साइड में एक ऑब्जेक्टिव है और एक स्मॉल फोकल लेंथ वाली लेंस है, उसको हम छोटा कर देंगे इससे, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ जो है वो स्मॉल है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे। चलो भाई, और इसको क्या बोलेंगे? आईपीस। ये ई से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या आपको वाकई में दिख रहा है कि ये बड़ी है? हाँ, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। अगर इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है तो इसका पावर कितना होगा? वो भी ज्यादा होगा आपकी काबिलियत से, नहीं उल्टा होगा। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम होगा। और इसी तरह से ये हमारे पास आईपीस है, ये C1, ये हमारे पास C1 है, और ये जो है ऑप्टिकल सेंटर इसका C2 है, राइट। सेम चीज मैंने बोला, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू लेंसेज, एक लेंस ये, एक लेंस ये, एक लेंस ऑब्जेक्टिव, एक लेंस आईपीस। लार्ज फोकल लेंथ इसका रहेगा,
स्मॉल फोकल लेंथ इसका रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए, उसके बाद में यहां पर भी हमारे पास इमेज कैसे बनेगी, पहले हम उसको देखेंगे कि इमेज कहां पर बनेगी। उसके बाद में हम इस टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन निकालेंगे एज इट इज, जैसे हम माइक्रोस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन निकालते थे। और मैग्निफिकेशन को निकालने से पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन और इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। अब इसको मैं यहां से रब करता हूं। ये इमेज बनाता है, डिस्टिंक्ट इमेज बनाता है। एक एक स्टेप को समझिए। ये डिस्टिंक्ट इमेज बनाता है। किसकी इमेज बनाता है? किसी ऑब्जेक्ट की, दूर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है। दूर, बहुत दूर। तो कहां से रेज? तो जब किसी फार अवे ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी तो मेरे ख्याल से वो रेज जो है इन्फिनिटी से मान के चलते हैं या बहुत दूर मान के चलते हैं। किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट से जब आएंगी रेज, वो हमेशा पैरेलल आएंगी, वो हमेशा पैरेलल आएंगी। याद तो है ना? हमेशा दूर वाले ऑब्जेक्ट से रेज क्या आएंगी? पैरेलल आएंगी। मैंने बोला है पैरेलल रेज आएंगी। तो मान लो यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं इस वाली सूरत में, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है, यहां से आप इसको देख रहे हो तो ये एक एंगल पर आ जाएंगी। ठीक है, मान लो एक रे ऐसे आई, ठीक है, एक रे ऐसे आई, ठीक है, एक रे इस पर पड़ी, इसीलिए तो बहुत सारी रेज इस पर गिरे, तो इसीलिए इसका अपर्चर बड़ा बनाया था हमने। ये अपर्चर, बड़ी अपर्चर वाली लेंस है ये पैरेलल आती हैं। और मान लो ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर है, उसकी हम इमेज बनाना चाहते हैं और उससे जो रेज आएंगी वो आएंगी पैरेलल। क्या आएंगी? पैरेलल। क्या आएंगी? पैरेलल। अच्छा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पर रिफ्रैक्शन हो जाएगी और यहां से ये वाली जो ये सीधे निकलेगी, इसमें कोई परेशान वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो ऑप्टिकल सेंटर से C1 से निकलेगी तो सीधी पास हो जाएगी। तो ये थोड़ा डिविएट होके यहां पर मिलेंगी और ये थोड़ा डिविएट होके यहां पर मिलेंगी। ये ऐसे, ताकि ये हम कोशिश करें इसको यहां पर मिलाने की। ये हमारे पास यहां पर जो बन गई इमेज, ये इमेज, और इसका नाम रखेंगे ए बी इमेज बन गई है। ठीक है, और ये इमेज कहां पर बनेगी ये ध्यान से देखना है। ये फोकस है, ये फोकस है F0। ठीक है, ये फोकस है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है, और इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। बेसिकली फोकल प्लेन में कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो यहां मिलना था ना फोकस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम जो भी रेज आती थी उनको हम फोकस, और मिलती कहां पर थी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मिलती हैं। और ये फोकल प्लेन के बारे में थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए, अगर किसी लेंस पर, ध्यान से, अगर किसी लेंस पर रेज ऐसे आएंगी, अगर किसी लेंस पर ऐसी रेज आएंगी, ये ऐसी रेज आएंगी, ठीक है, ये किसी लेंस पर अगर रेज ऐसी आएंगी, ध्यान से देखना है, एक रे ऐसे आ गई, एक रे ऐसे आ गई, एक रे ऐसे आ गई, तो इनका मिलन यहां कहीं होगा। ये अब देखिए, ये इसका फोकस है तो ये इसका फोकल प्लेन हो गया। देखिए, अगर अब रेज ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, तो ये ऐसे जाके यहां कहीं ऐसे करके मिलेंगी। देखिए, ये भी उसी लाइन पर आ गया। तो ये आफ्टर मीट, जब ये आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट हो जाएंगी तो ये इस जगह पर कहीं पर भी मिल सकती हैं, और इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। तो ये फोकल प्लेन पर कहीं पर मिलती है और वहां पर इसकी इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्टिव, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बड़े अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, अब देखिए, यहां पर ये जो है फोकल प्लेन, और ये यहां से यहां फोकल लेंथ, ये यहां से यहां इमेज बन गई। और किसने ये इमेज बनाई?
ये इमेज बनाई ऑब्जेक्टिव ने, तो ये हो गया इसका V नॉट इसकी इमेज हो गई, राइट। ये F0 हो गया। अब देखिए, अगर यहां से इसकी फोकल लेंथ FE मान के चलते हैं, क्योंकि आईपीस है तो इसकी फोकल लेंथ FE। अब देखिए यहां पर क्या होगा, बिल्कुल वही पैटर्न होगा, एक रे पैरेलल जाएगी, एक रे ऐसे जाएगी, ठीक है। और दोनों आफ्टर मीटिंग ये यहां से FE यहां से कहीं निकल के जाएंगी, और जब हम इनको बैक ट्रैक करेंगे, बिल्कुल जैसे माइक्रोस्कोप के केस में किया था, इनको हम यहां पर मिलाएंगे तो यहां पर हमारी फाइनल इमेज बनेगी। ये देखिए, ये हमारी इमेज बन गई फाइनल इमेज, ये बन गई B' और ये बन गई A'। ये हमारे पास फाइनल इमेज आ गई, ये वाली हमारे पास फाइनल इमेज आ गई, ठीक है। अब ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, हाउ द इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस इन केस ऑफ टेलीस्कोप। फिर से हमारे पास ये जो रेज आ गई, ये कौन सी रेज है, ये पैरेलल रेज है। पैरेलल रेज आफ्टर मीटिंग फोकल प्लेन पर यहां पर मिल गई, तो ये जो यहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज इस वाले इन्फिनिटी पर, फार अवे ऑब्जेक्ट जो था उसकी इमेज यहां पर बन गई AB, और ये किसने बनाई, ऑब्जेक्टिव ने बनाई इमेज AB, और ये AB एक्ट करेगा इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद ये दोनों यहां पर मिलेंगी, ठीक है। ये हमारी फाइनल इमेज इतनी बड़ी इमेज बनती है, ठीक है। ये इसका हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गया। और मान लो यहां पर और एक बात है, अगर हम नॉर्मल की बात करें, इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको यहां पर मैं लिखता हूं। ये यहां पर बनाया जो केस मैंने, ये हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो फाइनल इमेज बनती है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट मैंने दिखाया था। नॉर्मल एडजस्टमेंट मैंने बोला था ये जो दो केसेस होते हैं, एक हमारे पास केस होता है जब ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है LDDV पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, और दूसरा जब ये कहां पर बनेगी, इनफिनिटी पर, राइट। तो दो केसेस है, और ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर मैंने बनाया ये वाली चीज, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप द फाइनल इमेज इज फॉर्मड इन द नॉर्मल ये तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में नहीं, ये जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जब इमेज बनेगी। और जो नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज बनती है इन्फिनिटी पर, इमेज बनती है, और उसको बोलते हैं उस टाइम रिलैक्सेड IB। तो फिलहाल इस पर हम फिर से आगे आते हैं, लेकिन यहां पर इसको फिर मैं बोल ना जाऊं, तो यहां पर मैं इसको लिख के रखता हूं, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप image is formed at infinity, image is formed at infinity। ये याद रखना, कभी कभी पूछा भी जाता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज कहां पर बनती है, वो इन्फिनिटी पर बनती है, राइट, क्लियर। अब देखिए, फिर अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, किसके लिए ऑब्जेक्ट है, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है। फिर से ये किसके लिए ऑब्जेक्ट है, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट की, अब जो एक्चुअली इसकी इमेज है, जो इसकी इमेज है, लेकिन इसकी ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज को इन्फिनिटी पर बनना है, तो इसको कहां पर होना चाहिए, इसको इसकी FE पर होना चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस पर। और जब हम इसकी इन्फिनिटी बनाएंगे, जब हम इसकी नॉर्मल एडजस्टमेंट करेंगे, जब हम इसकी इमेज को इन्फिनिटी पर बनाना चाहते हैं, तब ये जो इमेज है इसको आना पड़ेगा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस पर। और जब कोई फोकस पर होगा ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। लेकिन यहां पर मैंने क्यों बनाई LDDV पर, क्योंकि यहां पर मैंने केस लिया है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का, क्लियर। तो ये D पर मैंने बनाई है इमेज, ठीक है। चलिए, ये तो कंस्ट्रक्शन होगी, फिर कैसे बनेगी वो तो फिर हम आगे और देख लेंगे। फिलहाल मैग्निफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप, तो हेडिंग बनाइए मैग्निफाइंग
पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। तो हेडिंग नोट करिए, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। चलिए, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? अच्छा, उससे पहले और एक बात, मैग्नीफाइंग पावर को डिस्कस करने से पहले और एक बात, हम इस आईपीस को ऐसे एडजस्ट करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बोला कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो इसकी फाइनल इमेज बनेगी, इस इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट इसके लिए है, इसकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। तो उसके लिए इसको रहना पड़ेगा फोकल, इसके फोकस पर, तब इन्फिनिटी पर बनेंगे। लेकिन अगर यहां कर बात की जाए तो यहां पर जो हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ द आई पीस, द डिस्टेंस ऑफ द आई पीस, ये डिस्टेंस ऑफ द आई पीस कहां से? फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। द डिस्टेंस ऑफ द आई पीस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इज सो एडजस्टेड, यानी वुनकिन तितकिन करानी एडजस्ट ताकि सान इमेज बने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजनस पे। तवे बनो मे ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजनस पे। तो बहुस यह करान ये योतन तान यह डिस्टेंस ये आई पीस डिस्टेंस यह तिथ मोन गोडनेथ फिटेड ऑन ए ट्यूब, हम इनको पीछे आगे पीछे कर सकते हैं कि बहुस यहान कि ये इमेज गज बन में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजनस पे। तम खतर बह यह आई पीस करान एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव लेंस, तवे बन में इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजनस पे। मगर नॉर्मल केसेस में क्या बन? नॉर्मल केस में ये इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, और अगर इसको इन्फिनिटी पर बनना है तो इसका मतलब इसको रहना पड़ेगा इसके फोकस पर, एफ ई पर, उसको उस पर भी आते हैं। लेकिन फिलहाल हमने कहां पर इमेज बनाई? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन। तो इस पॉइंट को भी हम नोट करेंगे, इस पॉइंट को भी हम नोट करेंगे। नोट करिए इस पॉइंट को, द डिस्टेंस ऑफ द आई पीस इज सो एडजस्टेड, या यहीं पर मैं लिखूंगा द डिस्टेंस ऑफ the eyepiece, the distance of the eyepiece is so adjusted, the distance of the eyepiece is so adjusted, the final image is formed at LDDV. The distance of the eyepiece from objective is so adjusted that the final image is formed at LDDV. The final image is formed at LDDV. The distance of the eyepiece from the objective is so adjusted that the final image is formed at LDDV. ठीक है, तो हम अपने हिसाब से इस आईपीस को एडजस्ट करते हैं, हम अपने हिसाब से इस आईपीस को एडजस्ट करते हैं ताकि जो फाइनल इमेज बनेगी वो LDDV पर बननी चाहिए। अदरवाइज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट वो कहां पर बनती है? वो इन्फिनिटी पर बनती है। कोई परेशानी यहां तक? तो नोट करिए, इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, फिर हम इसको रब करके आगे मैग्निफिकेशन पर आते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाइए, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इमेज जो एंगल बनाती है हमारी आंख पर, और यहां पर हम अपनी आंख को कहां पर रखेंगे? ये देखिए, ये हम अपनी आंख को कहां पर सेट करते हैं? वेरी क्लोज टू द आई पीस, हम अपनी आंख को यहां सेट करते हैं।
ये हम अपनी आंख को यहां पर हम सेट करते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट और आईपीस जो एंगल बनाती है आईपीस पर या उसके साथ में ही हमारी आई है उस पर जो एंगल बनाती है उनका रेशो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप कहलाएगा। लेकिन यहां पर पहले हम एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं हम बात, पहले हम एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। एंगल्स की बात करते हैं। ये देखिए, ये जो ध्यान से देखना है, ये हमारे पास यहां पर जो एंगल बनता है, एंगल की बात करेंगे, हमारे पास जो एंगल बनता है ये वाला एंगल, ये इसका नाम रखते हैं अल्फा। ऑब्जेक्टिव पर ये अल्फा बनाता है, इसका मतलब अगर ये अल्फा है तो यहां पर ये भी अल्फा ही होगा। और जो इमेज बनाती है, जो इमेज बनाती है, ये इमेज बनाती है कहां पर, यहां पर, उसका नाम रखेंगे बीटा, ठीक है। यहां पर बनाती है बीटा, जो इमेज बनाती है आंख पर, आईपीस पर या आंख पर, वो एंगल क्या हो गया, एंगल फॉर्मड बाय इमेज एट आई या एट आईपीस, क्योंकि दोनों साथ में है। और ये अल्फा जो है, ये अल्फा यहां पर बनाता है, ये अल्फा यहां पर बनाता है। लेकिन यहां पर आप लोग डेफिनेटली मुझे एक क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये दोनों का कंपैरिजन, अल्फा ऑब्जेक्ट वाला एंगल और आईपीस और इमेज वाला एंगल, ये दोनों एक ही जगह पर बननी चाहिए। ये तो ऑब्जेक्टिव पर बन रहा है, ये तो आईपीस पर बन रहा है। यहां पर एक एजम्पशन है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बोलता है कि जो अल्फा, ये इस और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस, ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस इतनी ज्यादा है, इतनी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है इन्फिनिटी से लेकर यहां तक। उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस, इन दोनों लेंसेज के दरमियान वाला डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। फिर से इसको मैं रिपीट करूंगा, सर ये अल्फा वाला एंगल जो है, ये अल्फा और ये बीटा तो हमारी आंख पर एक ही जगह पर बननी चाहिए, लेकिन आपने ये वाला एंगल अल्फा इधर ले लिया और बीटा इधर ले लिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, तो यहां पर एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि बेसिकली ध्यान से देखना है, यहां पर हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था वो कहीं फार अवे था, बहुत दूर इन्फिनिटी पर मान लो, वो वाली डिस्टेंस यहां तक कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन ये इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस बहुत कम एज कंपेयर टू ना के बराबर। अब आप अल्फा यहां ले लो या यहां ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहां की डिस्टेंस सेंटीमीटर में और वहां तो किलोमीटर्स में, हजारों किलोमीटर्स की दूरी, तो कहां सेंटीमीटर, कहां 10 सेंटीमीटर, कहां 1 मीटर और कहां हजारों किलोमीटर। तो इसके कंपैरिजन में ये कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम इसको यहां पर माने या यहां पर माने तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस इतनी कम है एज कंपेयर टू किसी फार अवे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से जो कि इन्फिनिटी पर लगा है, ठीक है। इसीलिए हम यहां पर इसको रखते हैं, ठीक है। ये अब हमारा अल्फा वाला एंगल हो गया, ये हमारा बीटा वाला एंगल हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछे ये एंगल इधर क्यों लिया, ये एंगल इधर क्यों लिया, अरे जनाबे वाला, ये जो इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट है वहां से लेकर यहां तक की दूरी और ये इतनी छोटी सी दूरी, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये एंगल यहां ले लो या यहां ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल। तो लिखूंगा मैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप is defined
is defined as the angle subtended at the eye, is defined as the angle subtended at the eye, is defined as the angle subtended at the eye by the image, at the eye by the image, at the eye by the image, subtended by the at the eye by the image. ठीक है, at the eye by the image. When it is at least distance of distinct vision, when it is at least distance of distinct vision, when it is at least distance of distinct vision, when it is at least distance of distinct vision to the angle subtended by the object, to the angle subtended by the object, to the angle subtended by the object, to the angle subtended by the object at the eye, at the eye, at the eye when seen directly, at the eye when seen directly, when seen directly, when seen directly, at the eye when seen directly. इसको ध्यान से देखिए, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द एंगल subtended by the eye, subtended by the eye, subtended at the eye, subtended at the eye by the image, when it is at least distance of distinct vision, when it is at least distance of distinct vision to the angle subtended by the object, to the angle subtended by the object जो इन्फिनिटी पर है, at the eye when seen directly. अब आई यहां पर मैंने इसको रिज्यूम इधर कर लिया अल्फा, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस ना के बराबर है एज कंपेयर टू डिस्टेंस